Good morning and Jai Hind everyone. Today we are starting the new chapter that is decimal. Okay, and in your NCERT book, the chapter decimal is chapter number 8. So I would request you all to write it down this heading on your fair copy if you have not written till now. Okay, chapter 8 decimals. Now, if you all remember, I have just told you a small thing that you are knowing this month is a full of festival month, है ना? इस month को हम generally festival month बोलते हैं because in this month we have so many festivals. Either you talk about Varavafat or you talk about just now Deepavali you have done, ठीक है? Then you are having Chhat Puja, ठीक है? So you have so many festivals in this month. So you means you are knowing that festival means so many sweets, ठीक है? हर फेस्टिवल में जनरली कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप की स्वीट्स खाता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ डिसाइड करने वाले हैं कि हम लोग स्वीट के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड डेसिमल पार्ट, ठीक है? So let's understand. You had suppose 10 laddus in any of the festival. You have got this. Okay, so you had total 10 laddus. Now suppose your little brother or maybe your younger brother has asked you to give the laddus to you to him also. Okay, so you have given 2 laddus to your younger brother. Okay, I'm talking about this younger brother. So 2 laddus you have given to your younger bro. Then you have an elder brother also. So elder भैया ने भी आपसे मांगा तो आपने 1 लड्डू अपने elder भैया को दे दिया, ठीक है? उसके बाद आपके दादाजी आए, ठीक है? एंड दादाजी ने बोला कि तुम अकेले अकेले लड्डू कैसे खा सकते हो भाई, मुझे भी कुछ लड्डू चाहिए। तो तुमने बोला कि दादाजी आप तो बड़े हैं, मैं आपको सिर्फ 1 ही लड्डू दूंगा। तो दादाजी आए और आपने दादाजी को भी 1 लड्डू पकड़ा दिया। अब आपने सोचा हे भगवान अब कोई नहीं आना चाहिए वरना धीरे धीरे करके तो मेरे सारे लड्डू जाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? दादाजी आए तो दादी भी आएंगी, अब दादाजी के बाद दादी आएंगी, ठीक है? और दादी ने आपसे बोला कि दादाजी को लड्डू दे दिया, मुझे कौन लड्डू देगा? तो दादाजी ने बोला कि मुझे दादी ने बोला मुझे भी लड्डू चाहिए, ठीक है? तो दादी को भी आपने 1 लड्डू दे दिया। अब आपने उस रूम को लॉक कर लिया और आपने बोला जब तक मेरे पूरे लड्डू में खा नहीं लेता मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलूंगा वरना सब लोग आकर के 1 1 लड्डू मांग लेंगे, ठीक है? सो आपने रूम किया लॉक एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड ईटिंग लड्डू जो बचे हुए थे। सो लेफ्ट लड्डूज आर फॉर यू, ठीक है? नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज राइट इट डाउन। सी आई हैव रिटन ऑल द लड्डूज जिसको आपने दिया है, जितना भी दिया है 10 आपके पास टोटल था बिगनिंग में। Now, I want these all laddus which you have given, which is left in the form of fractions. I am giving you 1 minute of time. Please write it down all these laddus in the form of fractions one by one. जितना आपने यंगर ब्रदर को दिया, जितना आपने एल्डर ब्रदर को दिया, जितना आपने दादाजी को दिया, जितना दादी को दिया और जितना आपके पास बचा, सारा का सारा इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखिए फटाफट से। So I am just telling you now which question I have given you. I am just summarizing this. ठीक है? Younger brother 2 laddus, elder brother 1 laddu, dadaji 1 laddu, dadi ji 1 laddu. Left laddus now. Look at here. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. We had total 10 laddus. 5 laddus were given. So it means we had 5 more laddus left for me or maybe for you. ठीक है? So this is now 5 laddus. Now I told you all that you have to find out these things in the form of fractions. So we had total 10 laddus, 2 were given. So this time fraction would be 2 by 10. Here the fraction would be 1 by 10. Here also the fraction would be 1 by 10. Here also the fraction would be 1 by 10. And here also the fraction would be 5 by 10 because here we had total 5 laddus. ठीक है? अभी हमने इनमें से किसी को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, अगर कन्वर्ट हो रहा होता तब भी नहीं किया है, ठीक है? वी हैव जस्ट रिटन एज वी हैव गॉट इट, ठीक है? नाउ ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था चैप्टर फ्रैक्शंस।
फ्रैक्शन चैप्टर जिसको आता है उसको डेसिमल चैप्टर बहुत इजीली आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बिकॉज फ्रैक्शन से ही डेसिमल आता है, ठीक है। डेसिमल अपने आप से नहीं आया, फ्रैक्शन भी डेसिमल से ही आया है। कैसे आया है? याद रखो, जितने भी फ्रैक्शंस हमने पढ़े हैं वो सारे फ्रैक्शन डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि हम जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उनको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यू कैन राइट इट डाउन इफ द नंबर इज 5/8, ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन 5 divided by 8, you can write it down 2 divided by 10, this you can write it down as 1 divided by 10, here you can write it down 1 divided by 10, this you can write it down 5 divided by 10। और जब भी 5 डिवाइडेड बाय 10 या हम ऐसे नंबर्स लिखते हैं तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो या तो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और या तो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो हमें मिल जाता है होल नंबर, और जब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है तब हमें मिलते हैं डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो याद रखिए, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं उन्हीं से हमको डेसिमल मिलता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड कि डेसिमल आया कहां से। डेसिमल्स आर द स्पेशल फ्रैक्शंस, ऑलवेज रिमेंबर, decimals are the special fractions with denominator 10, 100, 1000, 10,000। याद रखिए, जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं, जितने भी फ्रैक्शंस हमने पढ़े हैं, अगर उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएं, 2/10, 5/100, 3/1000, 10/10,000, ठीक है। इट मीन्स इफ देयर डिनोमिनेटर इज 10, 100, 1000, 10,000 और मे बी लैख, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आए, ठीक है, या ऐसा कोई नंबर जिसको आप 10 बना सकते हो, या ऐसा कोई नंबर जिसको आप 100 बना सकते हो, लाइक 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बना सकते हैं, ठीक है। 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बना सकते हैं। सो रिमेंबर, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10 होता हो, 100 होता हो, 1000 होता हो या 10,000 होता हो, या ऐसा कोई नंबर होता हो जिसको हम 10, 100 या 1000 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे फ्रैक्शंस जो होते हैं वो डेसिमल बन जाते हैं, इजिली डेसिमल बन जाते हैं, ठीक है, जिन डेसिमल को आपको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये फ्रैक्शन ना हुआ तो डेसिमल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जितने भी फ्रैक्शन हमने आज तक पढ़े हैं वो सारे के सारे फ्रैक्शंस डेसिमल बन सकते हैं बेटा, ठीक है। एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डेसिमल केम इनटू द रोल, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस लड्डू ऑल्सो, ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। अभी this activity we will discuss is in the form of decimal as well right now after explaining this। see, I am now explaining it to you how the numbers are coming। सबसे पहले आपने पढ़ा था ये होल नंबर चैप्टर, जब मैंने पढ़ाया था आपको, देन वी हैड सपोज नंबर्स लाइक 141, तो आप इसको कैसे लिखते थे? 100 प्लस 40 प्लस 1 लिखते थे आप? यस और नो प्लीज रिप्लाई। Suppose if I will give you a number 4,853, how will you write it down? Copy में लिखिए, how can you write it down? 4,000 plus 800 plus 50 plus 3, ठीक है, this you can write it down। बट सेम थिंग, अगर मैं आपको ये नंबर जो है वो इस फॉर्म में ना देके मैं अगर आपको इस फॉर्म में दे दूं, अब क्या करेंगे? ठीक है, इस केस में हमारा जो नंबर है वो तो दो पार्ट्स में आ गया बेटा। देयर इज सम पार्ट विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर, but there are some part which is given extra। For example,
अभी तो बेटा पैसे चलना बंद हो गए, बट देन टू आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिन सामान में आपका डेसिमल वैल्यू भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग का पैसा चलता था तब हम लोग कहते थे 7 रुपीज 50 पैसे का ये सामान है, 3 रुपीज 30 पैसे का सामान है पहले, है ना। अब तो पैसे बहुत कम हो चुके हैं, बट देन टू अभी भी अगर आप कोई सामान लेने जाते हो मॉल में, तो आपने देखा होगा कि अगर हम कभी हरी धनिया खरीद रहे हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉल, ठीक है, जब मॉल में आप हरी धनिया खरीदते हो और वहां पर अगर आपने कोई सामान लिया, तो जनरली उनकी कॉस्ट ऐसी होती है 11 रुपीज 70 पैसे, 11 रुपीज 35 पैसे, 11 रुपीज 99 पैसे, ठीक है। सो इन दैट केस यू हैव सम मनी फॉर विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आफ्टर डेसिमल ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, आपको इनको भी रीड करना पड़ता है, तो वी नीड समटाइम्स डेसिमल नंबर ऑल्सो टू रीड। देन सेम थिंग, अगर मैंने आपको बोला आपको किसी साड़ी की या किसी कपड़े की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, यू हैव वेरी बिग मेजरमेंट ऑफ क्लोथ एंड यू हैव टू मेजर इट। अगर फुल अमाउंट में आ गया, फुल नंबर में आ गया, लाइक 4 मीटर की है, 3 मीटर की है, 50 मीटर की है, देन तो इट इज फाइन। बट अगर कुछ पार्ट बचा रह गया जो ना ही पूरा है और ना ही कंप्लीट आधा है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में तो फ्रैक्शन आ जाएगा, और जब फ्रैक्शन आएगा बेटा तब डेसिमल भी आएगा, ठीक है। जैसे सपोज आपको मैंने बोला कि यू हैड ईटन 3 चपातीज, बट एक और चपाती रखी थी, उसका आपने केवल एक बाइट लिया, ठीक है, यू हैव ओनली टेकन 1 बाइट। So in that case, what will happen? You have to convert that, and then when you will remember, जब भी हम convert करेंगे fraction को, तो उसको convert करते समय वो decimal में भी convert हो जाएगा, ठीक है। So remember always, whenever we talk about fraction, we can also convert them in the form of decimal. Every fraction can be converted in the form of decimal, ठीक है। तो फ्रैक्शन चैप्टर एंड डेसिमल चैप्टर बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों के दोनों आपस में टोटल इंटर रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर कैसे, 141 हमने पढ़ लिया, ऐसे ही आएगा, which I have just now told you, you have also replied to me. What about this 45? This 45 is called decimal part. This is whole number part and this is called decimal part. Because whole number we have already studied. This is called decimal number part. Yeah, you can call it decimal part. And this is called whole number part. Now write it down on your fair copy. Whole number part. And this is decimal part. And remember, जब हम किसी भी नंबर को जो कि डेसिमल वाला है, then we write it down in the form of expanded form. अभी हमने जो लिखा था वो expanded form था, तब ये हमें समझ में आता है ये किस तरीके से आया। Now look at here कैसे आया। This is 4, we can write it down as 4/10, and this is 5, we can write it down as 5/100. ये कैसे आया, I will tell you further, ठीक है, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। Now see this. Yes, Krishna. Yes, you have to write down this. Now I will explain you how this came into use. Should I explain? Okay. See, just now I told you that there is called whole number part and then something is called decimal part. ठीक है? Now I am going to tell you this. जब हम 10 पार्ट में से 2 पार्ट लेते हैं, look at here, जब हम 10 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स लेते हैं तब हम बोलते हैं 2/10, और जब हम 2/10 को फ्रैक्शन की जगह डेसिमल में लिखते हैं देन वी कॉल इट 0.2, ठीक है, 0.2। इसको पढ़ेंगे हम 10th पार्ट।
दिस इज कॉल्ड 10th पार्ट, बिकॉज उसका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है। जब हम 10 लिखते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं 10, लेकिन जब हम अपॉन 10 लिखते हैं बेटा तो उसे पढ़ते हैं 10th, TENTH, 10th। ओके, 10th मतलब होता है जब हम किसी को 10 पार्ट में से लेते हैं, देन वी कॉल इट 10th पार्ट। सो रिमेंबर दिस इज कॉल्ड 0.2। सपोज यू आर टेकिंग 7 पार्ट्स आउट ऑफ 10, बिकॉज हमने ये फ्रैक्शन तो पढ़ चुका है। सो अगर हम 10 पार्ट में से 7 पार्ट्स ले रहे हैं, देन वी विल कॉल इट 0.7। ठीक है, अब नाउ इफ आई विल टेक 5 out of 10, may I know what will you call it? 0.5. Very good, we will call it 0.5. Now I am giving you half of the minute. The question which is given in the form of laddu, write it down all their parts in the form of decimal. Write it down faster. Okay, so students, I have given you the question which was related to laddu, and I want those parts in the form of fractions. Now look at here. I told you younger bro, that was 2/10. What will be the decimal part? May I know from you? 0.2. Correct. Now may I know what was the fraction of your elder bro? 0.1, 1/10. ठीक है, देन दादाजी 0.1, दादी जी 0.1, and you yourself 0.5. Correct. Now you can see all those are written in the form of decimal. अब देखो गौर से, सारा क्या था, फ्रैक्शन में, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। ठीक है, अब यहां पर देखो कि डेसिमल में होल नंबर पार्ट कितना है। नाउ लुक एट हियर, आई टोल्ड यू इफ यू राइट अ नंबर लाइक 100.4, so remember you are talking about, this is called whole number. होल नंबर मीन्स अभी हम लोग लिखते थे ना 1 whole 3/4, that means this 1 is a whole number part and this 3/4 is in the form of fraction. ठीक है, ये तो हुआ तब जब हम फ्रैक्शन पढ़ते थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल। तो डेसिमल भी फ्रैक्शन से आया है, तब क्या करेंगे, सो रिमेंबर दिस इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट, एंड आफ्टर होल नंबर पार्ट देयर इज अ डेसिमल। ठीक है, और डेसिमल के बाद जो वैल्यू आती है दैट वी कॉल इट एज अ डेसिमल नंबर पार्ट, और यू कैन कॉल इट डेसिमल पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पर कैन यू टेल मी, यहाँ सबका होल नंबर क्या है, जल्दी से बताओ, यहाँ पे सबका होल नंबर क्या है, 10 है, 10 है पक्का। Look at here, whole number 0, whole number 0, whole number 0, whole number 0, whole number 0. Every number has 0 as a whole number. Decimal has different part. यहाँ पर decimal part is 2, यहाँ पर decimal part is 1, यहाँ पर decimal part is 1, यहाँ पर also decimal part is 1, here decimal part is 5. But in every other number has 0 as a whole number part. If I will write 1.1, that means you have whole number part as 1, decimal number part as 1. ठीक है, if I'll write 1.7, it means whole number part is 1 but decimal number part is 7. If I write 100.3, that means what is whole number part, 100, and what is decimal number part, 3. Correct. Okay, so remember
here 100 is a whole number part and 3 is a decimal number part. ठीक है, so let's understand by another example. ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं. अब इस बार सारा कुछ आप लोग खुद से करेंगे. ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करो. Now this time you have 10 pens. This time you have 10 pens. ठीक है, अब आप एक एक करके you have total 5 boys. ठीक है, one is boy A, second is boy B, third is boy C, fourth one is boy D, and the last one is boy E. Now I am distributing you all the pens. Total pens are 10, but I am giving you in the distribution form. ठीक है, E is getting 3 pens, D is getting 4 pens, C is getting 1 pen, 1 pen, 1 pen. ठीक है, now I want the number of pens in the form of fraction and also in the form of decimal. Do it faster. Now students, we had total 10 pens. ठीक है, so out of 10 pens, A has got 1 only, so 1 by 10 is a fraction. B has got again, so 1 by 10 only. C also 1 by 10 only. D 4 by 10 and E 3 by 10. ठीक है, now this is the fraction. Now let us convert this fraction in the form of decimal. Now how we will get this? 1 by 10 will be written as 0.1, again 0.1, again 0.1, 0.4, and this is 3 by 10, which will be converted as 0.3. ठीक है, this is all about fraction and decimal. Now look at here. If we add this all, may I know what we will get it? 1 by 10, 1 by 10, 1 by 10, 4 by 10, 3 by 10. May I know what will you get if you add this all? जल्दी से बताओ. 10 by 10. Very good. You will get 10 by 10 means you will get one whole. Will you get one whole? Yes or no? ठीक है, now let us add this decimal part and let's see whether we get one whole or not. ठीक है, चलो देखते हैं. So 0.1, 0.1, 0.1, 0.4, 0.3. Let us add this all. ठीक है, देखो 1, 1, 1, 4, 3. जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10 by 10. और 10 by 10 को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे जल्दी बताओ. जैसे अभी आप कर रहे थे ना, 4 by 10 को यू हैव रिटन 0.4, 3 by 10 को यू हैव रिटन 0.3. yes, see, if you have 4 by 10 you write 0.4. ठीक है, if you have the same thing, if you have 10 by 10 you will write 1.0 and 1.0 का मतलब होता है 1 whole. ठीक है, you will write 1 whole. ठीक है, I will explain you this more also when we will study more about it, but remember 10 by 10 means होता है 1 whole. ठीक है, and 1.0 also you can call it, because this time you are not taking the part, you are taking the full whole, so it will give us 1.0. This is not 10, huh? This is 1.0. Clear? Should we study more about it? Just 2 minutes I'll take it about this one. Now students, I am taking the help of your NCERT books. Now let's understand कि हम इसको पढ़ते क्या है. अभी तो हमने केवल लिख करके देखा. Now how we will read this? Suppose you have a number here like 143.2.4. ठीक है, so let's read this. This is called ones.
यू आर नोइंग अबाउट इट. वी कॉल इट वंस. अगर हमारे पास डेसिमल नहीं होता तो हम इसको वंस ही पढ़ते ना. इसको भूल जाइए. ठीक है, इसको भूल जाते हैं. दिस इज वंस. व्हाट इज दिस? वंस के बाद टेंस. ओके. व्हाट इज दिस? 100. ओके. व्हाट इज दिस? 1000. ओके. तो बेटा यहां तक तो आप सबको पता है कि इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, इसको 1000 बोलते हैं. और ये होता है आपका 10th वाला पार्ट. अभी हमने इसको पढ़ा ना, इसको पढ़ते हैं 10th वाला पार्ट, बिकॉज वी कॉल इट 4/10. दिस इज, यहां पर वन से स्टार्ट नहीं होता. ठीक है, डेसिमल के बाद वन से स्टार्ट नहीं होता. वी कॉल इट फ्रॉम 10th. सो आफ्टर डेसिमल यू विल रीड दिस वन. दिस इज 10th पार्ट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड 10th पार्ट. And after this number, whatever you will have it, like suppose if I'll write it down 3, so उसको पढ़ेंगे हम 100th part. 100th part. और अगर आपके पास एक और नंबर होता तो अब हम उसको पढ़ते 1000th part. TH is compulsory. ठीक है, so remember यहां पर टेंस नहीं होता, यहां पर वंस होता है. दिस इज टेंस, दिस इज 100. लेकिन जब हम डेसिमल के बाद पढ़ते हैं तो वहां पर TH लग जाता है. सो दिस इज TH. दिस इज 3/100. एंड इसको हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, आई विल टीच यू दिस वन फर्दर. So just you note it down. In the next class, we will study more about it. Remember, this is all about place value. हाँ, which we were discussing, this was about place value. So ये सारा हमने पहले से पढ़ा हुआ है बेटा. Whole number का place value chart we already know. But this is decimal number part. So remember, decimal numbers part start from 10th, not from ones. ठीक है? It start from 10th. So the first one is 10th. TENTH. We call it 10th. तो यहाँ पर 4 लिखा है तो हम उसको पढ़ेंगे 4/10th. Now this is 3. So इसको पढ़ेंगे हम, this is in the place of 100th. So हम इसको पढ़ेंगे 300th. ठीक है. Now here यहाँ पर क्या है 2. So this is 2000th. ठीक है. So this is in the place of 2. So we will call it 2000th. ठीक है. TH is compulsory बेटा, because this is only the difference between 100 and 100th. When we call it 100, we are talking about 100. And जब हम 100th बोलेंगे, it means we are talking about upon 100. ठीक है. So this was all about place value.